آپ تو کہتے میں وزیر اعظم ہوں. وزیر اعظم ہو تو پھر زبان بھی وزیر اعظم کی ہونی چاہیے نا. دعویٰ ہے وزیر اعظم ہی کا اور زبان ہے گالم گلوچ بریگیڈ. تم پاکستان کے حکمران نہیں رہے، تمہاری ریٹ ختم، ہماری شروع ہو چکی. فضل الرحمان کا آزادی مارچ سے خطاب میں حکمرانوں کو چیلنج، کہا شرافت کا ناجائز فائدہ نہ اٹھاؤ، حکومت کے خاتمے تک میدان میں رہیں گے. 2 روزہ مہلت کا آج پہلا دن ہے. تحریک جوہد مسلسل کا نام ہے، اب آگے اور میدان میں جائیں گے. ڈی چوک تک جانا ہماری منزل نہیں. مولانا نے حکومت کو گالم گلوچ بریگیڈ بھی قرار دے دیا. 2 دن کی مہلت ہے، پھر ہمیں نہ روکا جائے. پاکستان کے عوام کا یہ سمندر اس بات پر قدرت رکھتا ہے کہ وزیر اعظم کے گھر میں جا کر وزیر اعظم کو خود گرفتار کر. مولانا نے جو اعلان کیا کہ عوام جا کے عمران خان سے اس کے گھر میں اس کو پابند کر کے اسے زبردستی استعفیٰ لیں گے، اس کے خلاف عدالت میں ہم جا رہے ہیں. کور کمیٹی نے فیصلہ کیا ہے. مولانا فضل الرحمان کا وزیر اعظم کو گرفتار کرنے کا بیان، حکومت کا بغاوت کیس چلانے کے لیے عدالت جانے کا اعلان. پرویز خٹک کہتے ہیں حکومت اتنی لاچار نہیں کہ 20-30 ہزار لوگ آئیں اور تختہ الٹ دیں. اگر آزادی مارچ کے شرکا آگے بڑھے تو معاہدے کی خلاف ورزی ہوگی، پھر شکوہ نہ کرنا. افراتفری پھیلی تو ادارے کو آگے آنا پڑے گا. اگر ملک کو نقصان ہوا تو ذمہ دار فضل الرحمان ہوں گے. وزیر اعظم کے استعفے اور نئے انتخابات کا مطالبہ یکسر مسترد. عمران خان کی زیر صدارت پی ٹی آئی کی کور کمیٹی کا اجلاس. اپوزیشن کا کوئی بھی غیر آئینی مطالبہ قبول نہیں کیا جائے گا. شرکاء کا اتفاق، مارچ سے نمٹنے کے لیے مختلف تجاویز پر غور. ذرائع کے مطابق کور کمیٹی کی افواج پاکستان کے خلاف ہرزہ سرائی اور وزیر اعظم کو گرفتار کرنے کے بیان کی مذمت. جو استعفیٰ لینے آئے تھے وہ اپنے استعفوں پر غور کرنے لگے. رابر کمیٹی کے اجلاس کے بعد اکرم درانی کی پریس کانفرنس. بولے وزیر اعظم کا استعفیٰ اور نئے انتخابات اپوزیشن کا متفقہ مطالبہ ہے. مزید قافلے آ رہے ہیں، جانا کہاں ہے یہ طے کریں گے. اسمبلی سے مشترکہ استعفے، شٹر ڈاؤن اور سڑکیں بند کرنا زیر غور ہے. غیر جمہوری قوتوں نے صورتحال سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کی تو مزاحمت کریں گے. حکومت نے معیشت تباہ کر دی، ملک کی سلامتی سے بھی کھیل رہی ہے. احسن اقبال کا کہنا ہے وزیر اعظم کا بھارتی زائرین کے لیے پاسپورٹ اور ویزے کی شرط ختم کرنا ملک کی سلامتی کے لیے خطرہ بن سکتا ہے. نیر بخاری بولے دھرنے کے متعلق کوئی بھی فیصلہ پیپلز پارٹی کی قیادت سے مل کر کریں گے. میاں افتخار کا حکومتی ارکان کو زبان سنبھال کر بولنے کا مشورہ. اسلام آباد میں ریڈ زون کی سیکیورٹی مزید سخت، بختر بند گاڑیاں پہنچا دی گئیں، بنی گالہ کی سیکیورٹی بھی بڑھا دی گئی. آزادی مارچ کے شرکاء کی طرف سے معاہدے کی خلاف ورزی پر سخت ایکشن ہوگا. وزارت داخلہ میں اجلاس میں فیصلے. وزیر اعظم کی بھی وزیر داخلہ کو قانون نافذ کرنے والے اداروں کو چوکس رکھنے کی ہدایت. ان ہاؤس چینج آ سکتا ہے، یہ اکثریت پیش کریں. ان کے پاس اگر ممبر زیادہ ہیں، نو کانفیڈنس کر دیں تو تب ہو سکتا ہے. اس طرح غیر آئینی طریقے سے تو نہیں ہو سکتا کہ کوئی آئے کہ ان ہاؤس چینج کر دو اور -1 اور -2، ایسا نہیں ہوگا. ان ہاؤس تبدیلی ہو سکتی ہے اگر اپوزیشن کے پاس اکثریت ہے تو تحریک عدم اعتماد لے آئے. پرویز خٹک کی 92 نیوز سے گفتگو، کہا غیر آئینی طریقے سے تبدیلی نہیں آ سکتی، -1 یا 2 نہیں ہو سکتا. وہ وزیر اعظم بننے کے خواہش مند نہیں، عمران خان ان کے محسن ہیں. حکومت انتخابی اصلاحات کمیٹی بنانے اور دھاندلی کمیٹی فعال کرنے پر تیار ہے. امریکہ میں کشمیریوں کے حق میں تقریبات کا سلسلہ جاری. واشنگٹن میں پاکستانی اور کشمیری کمیونٹی کا شمع روشن کر کے مظلوم کشمیری بہن بھائیوں سے اظہار یکجہتی. کشمیری اپنے حق کی جنگ لڑ رہے ہیں اور ان کی آزادی کو کوئی نہیں روک سکتا. مظاہرین کا اظہار خیال.
جنیوا میں فرینڈز آف کشمیر اور سکھ فار جسٹس نے کشمیر خالصتان ریفرینڈم فرنٹ قائم کرنے کا اعلان کر دیا۔ احتجاجی مارچ اور کنونشن میں پاکستانی اور کشمیری رہنماؤں کی دنیا بھر سے شرکت۔ کشمیر اور خالصتان کے لیے مشترکہ جدوجہد پر اتفاق۔ سرکار کی آمد مرحبا۔ برطانیہ بھر میں نبی رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے میلاد کی روح پرور محافل کا سلسلہ جاری۔ بریڈ فورڈ کی جامع مسجد غوثیہ مہریہ درود و سلام کی صداؤں سے گونج اٹھی۔ ثنا خان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے گلہائے عقیدت پیش کر کے دل موہ لیے۔ جرمنی کے شہر راؤنڈہائم میں سالانہ محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اہتمام۔ کئی شہروں سے عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جوق در جوق آمد۔ پاکستان سے آئے نعت خوان محمد افضل نشاہی اور عابد معصومی نے نعتیہ کلام پیش کیا۔ شرکاء جھوم اٹھے۔ ترکی کے شہر استنبول میں اسلامی تعاون تنظیم کا اجلاس۔ مسئلہ کشمیر سمیت خطے کے دیگر مسائل پر گفتگو۔ عالمی برادری اور OIC ممالک مسئلہ کشمیر کے حل میں اپنا کردار ادا کریں۔ پاکستانی سفیر سائرس سجاد قاضی کا خطاب۔ سعودی عرب میں پاکستانی کمیونٹی کی ثقافتی سرگرمیاں عروج پر۔ الجبیل میں رنگا رنگ ثقافتی تقریب، موسم سرما کے دیدہ زیب ملبوسات، خوبصورت زیورات اور دیگر اشیاء کی نمائش۔ پاکستانی خواتین اور بچوں نے خوب لطف اٹھایا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پرائم ٹائم بلیٹن میں میں ہوں آپ کے ساتھ یاسر رشید۔ میں ہوں ثنا عثمان۔ کیا وزیر دفاع پرویز خٹک وزیر اعظم بننا چاہتے ہیں؟ دھرنے والوں کو اسلام آباد تک کون لایا؟ پرویز خٹک ان ہاؤس تبدیلی کے حامی، مگر کیوں؟ -1 یا -2 کی باتیں کون پھیلا رہا ہے؟ ان سب سوالات کے جواب شامل ہیں اسی بلیٹن میں، مگر پہلے ذکر آزادی مارچ کا، جس کے شرکاء اسلام آباد میں دھرنا دیے بیٹھے ہیں۔ وزیر اعظم عمران خان کو مستعفی ہونے کے لیے 2 دن کی ڈیڈ لائن دینے والے مولانا فضل الرحمان کہتے ہیں ٹانگ پر ٹانگ رکھ کر کرسی پر بیٹھنے کو حکومت نہیں کہتے۔ عمران خان کی ریٹ ملک سے ختم ہو چکی ہے۔ مولانا فضل الرحمان نے وفاقی حکومت کو گالم گلوچ بریگیڈ قرار دے دیا۔ ہم نے فیصلے کرنے ہیں کل اور پرسوں تک کہ ہم آنے والے دنوں میں اس سے سخت فیصلہ اور کیا کر سکتے ہیں تاکہ ہم اس فیصلے سے، اس میدان سے ایک دوسرے مؤثر میدان کی طرف منتقل ہو جائیں۔ آپ تو کہتے ہیں میں وزیر اعظم ہوں، وزیر اعظم ہو تو پھر زبان بھی وزیر اعظم کی ہونی چاہیے نا۔ دعویٰ ہے وزیر اعظمی کا اور زبان ہے گالم گلوچ بریگیڈ۔ یہ گالم گلوچ بریگیڈ ہے، ان کو گالیوں کے علاوہ کچھ نہیں آتا، جھوٹ بولنے کے علاوہ کچھ نہیں آتا، الزام تراشی کے حوالے سے کچھ نہیں آتا۔ ان کو یقین ہونا چاہیے کہ اب تمہاری حکومت نہیں ہے، صرف کرسی پہ ٹانگ ڈالنے کا نام حکمرانی نہیں ہوا کرتی۔ اب تم پاکستان کے حکمران نہیں ہو، تمہاری شرافت کا ناجائز فائدہ مت اٹھایا۔ مولانا فضل الرحمان کا انداز بیان حکومت کو ناگوار گزرا۔ گزشتہ رات وزیر اعظم کو گرفتار کرنے کا بیان بغاوت قرار دے دیا۔ حکومتی کمیٹی نے مولانا فضل الرحمان کے خلاف عدالت جانے کا اعلان بھی کر دیا۔ 2 دن کی مہلت ہے، پھر ہمیں نہ روکا جائے۔ پاکستان کے عوام کا یہ سمندر اس بات پر قدرت رکھتا ہے کہ وزیر اعظم کے گھر میں جا کر وزیر اعظم کو خود گرفتار کرے۔ مولانا فضل الرحمان کی 2 روزہ ڈیڈ لائن کا ایک دن گزر گیا مگر استعفیٰ نہیں آیا۔ استعفیٰ تو درکنار حکومت وزیر اعظم عمران خان کو گرفتار کرنے کے مولانا فضل الرحمان کے بیان پر برہم ہو گئی۔ پرویز خٹک اور فردوس عاشقوان نے بیان کو بغاوت قرار دیتے ہوئے عدالت جانے کا اعلان کر دیا۔ مولانا نے جو اعلان کیا کہ عوام جا کے عمران خان سے اس کے گھر میں اس کو پابند کر کے اسے زبردستی استعفیٰ لیں گے، اس کے خلاف عدالت میں ہم جا رہے ہیں۔ کور کمیٹی نے فیصلہ کیا کہ یہ لوگوں کو انسٹیگیٹ کر رہے ہیں، ان کو غلط طرف لے جا رہے ہیں اور یہ ایک میوٹینی ہے۔ میں آپ سے یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ کسی سیاستدان کو یہ حق اور اختیار دیا جا سکتا ہے اس ریاست میں کہ وہ اداروں سے یہ آئین سے بغاوت کے زمرے میں آتا ہے۔ پرویز خٹک نے واضح کیا کہ پاکستان اتنا معمولی نہیں کہ 40-50 ہزار لوگ حکومت کا تختہ الٹ دیں۔ ہم نے تو کلیئر کہہ دیا ہے کہ ایک تو پرائم منسٹر کی ریزگنیشن پہ کوئی بات نہیں ہوگی، اس کا سوچے بھی نہ کوئی۔ حکومت تو اس طرح لاچار نہیں ہوتی ہے کہ یہ آئے اور حکومت پہ قبضہ کر لیں اور کیا پرائم منسٹر کے گھر پہ جا کر استعفیٰ لیں گے، تو یہ غلط فہمی نہیں رہنا چاہیے۔ وزیر
दिफा ने कहा कि सिर्फ वजीर आजम इमरान खान ही हुकूमत नहीं बल्कि अदारे भी हुकूमत हैं। मौलाना ने मुआहिदा तोड़ा तो अदारे कानून के मुताबिक हरकत में आएंगे, जिसकी तमाम तर जिम्मेदारी मौलाना फजलुर रहमान पर होगी। आपने एक एग्रीमेंट किया है और उस पर हमें उम्मीद है कि उस पर अमल दरामद करेंगे और उसे आगे नहीं बढ़ेंगे। अगर कोई नुकसान हुआ, कोई चीज़ को नुकसान पहुंचा, मुल्क को नुकसान पहुंचा, तो ये जिम्मेदारी इन पर आएगी। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान हुकूमती कमेटी ने कहा कि मुज़ाकरात के दरवाजे हमेशा खुले हैं, मगर आइन और कानून के बाहर कोई बात नहीं मानी जाएगी। वज़ीर आज़म इमरान खान को इस्तीफे के लिए 2 दिन का अल्टीमेटम देने वाली अपोजिशन ने असेंबलियों से खुद मुस्ताफी होने पर गौर शुरू कर दिया। हुकूमत की जानिब से लचक दिखाई ना देने के बाद अपोजिशन की रहबर कमेटी ने मुश्तरका इस्तीफों समेत मुल्क भर में शटडाउन, हाईवेज बंद करने और सड़कों पर आने का इंदिया भी दे दिया। 2 दिन की मोहलत है, फिर हमें न रोका जाए। पाकिस्तान के अवाम का ये समंदर इस बात पर कुदरत रखता है कि वजीर आजम के घर में जाकर वजीर आजम को खुद गिरफ्तार कर। हमारे ज़ेरे गौर इस्तीफे भी हैं, शटर डाउन भी है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के इस्तीफे का मुतालबा करने वाली अपोजिशन ने खुद असेंबली से मुस्ताफी होने पर गौर शुरू कर दिया। इस्लामाबाद में अकरम दुरानी की सरबराही में अपोजिशन की रहबर कमेटी का इजलास हुआ, जिसमें धरने के बाद पैदा होने वाली सूरत हाल का जायजा लिया गया। इजलास के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए अकरम दुरानी ने बताया कि मुश्तरका इस्तीफे, मुल्क भर में शटडाउन, हाईवेज की बंदिश समेत कई तजावीज़ ज़ेर गौर आई। हमारे ज़ेरे गौर इस्तीफे भी हैं, शटर डाउन भी है। हाईवेज पूरे मुल्क को ब्लॉक करना, अजला की सतह पे 20 तारीख को हर एक वो काम जो कि एक तारीख के लिए जरूरी होता है, ये सारे ऑप्शन आज हमने रखे हैं। अकरम दुरानी ने डी चौक जाने की खबरों को काबिल वक्त करार दे दिया। ये हम पे छोड़ दें, आप ये फैसले न करें कि डी चौक है, ये फैसले हम करेंगे कि हमने किधर जाना है। एक माहदा हमने किया है, हम उस माहदे पे अभी तक बरकरार हैं, लेकिन हुकूमत उससे भाग रही है। एनपी रहनुमा मियां इफ्तिखार ने हुकूमती अरकान को जबान संभाल कर बोलने का मशवरा देते हुए बेजा तनकीद से बाज रहने की ताकीद कर दी। जो कहते कि हालात को संभल के बात करनी चाहिए, तो ये हुकूमत भी संभल कर बात करे, जुबान संभाल के बात करे। वैसे भी ऐसे जगह पे बैठे हैं कि एक धक्का दो तो इनका कोई दरक और पता नहीं चलेगा। प्रेस कॉन्फ्रेंस में एहसन इकबाल और पीपल्स पार्टी के नैयर बुखारी ने भी हुकूमत को खूब लताड़ा। मुश्तरका इस्तीफे क्यों? इन हाउस तब्दीली कर लें। जो बात अपोजिशन के जहन में ना आई, वजीर दिफा परवेज खटक ने खुद बता दी। वो 92 न्यूज के नुमाइंदे फहीम अख्तर से गुफ्तगू कर रहे थे। कहा इन हाउस तब्दीली का ऑप्शन बता दिया। कहते हैं अगर अपोजिशन के पास अक्सरियत है तो तहरीक अदम एतमाद ले आए। वजीर आजम बनने के सवाल पर परवेज खटक का चेहरा गुलाब की तरह खिल उठा। नए इंतखाबात का मुतालबा है और जो कहा जा रहा है कि इन हाउस चेंज लाया जाएगा और कहा जा रहा है कि खटक साहब को वज़ीर आज़म बना दें, हम वो तस्लीम कर लेंगे। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। मैं ना सोच सकता। इमरान खान मेरा लीडर है, मेरे पर बहुत एहसानात है उनके। इन हाउस चेंज आ सकता है, ये अक्सरियत पेश करें। इनके पास अगर मेंबर ज़्यादा हैं, नो कॉन्फिडेंस कर दें तो तब हो सकता है। इस तरह गैर आईनी तरीके से तो नहीं हो सकता कि कोई आए कहे और इन हाउस चेंज कर दो और -1 और -2, ऐसा नहीं होगा। एक आईनी तरीका है, उसके अंदर जो मर्जी कर ले, ओपन है फ्लोर। आपको बताएं कि आज़ादी मार्च में एहतजाज के साथ मौज मस्ती भी जा रही है। जमीयत उलमा इस्लाम के कारकुन नाश्ते के बाद इस्लामाबाद के तफरीही मकामात पर निकल गए। कोई चिड़िया घर गया तो किसी ने फैसल मस्जिद देखी। सेल्फियों का भी खूब दौर चला। आजादी मार्च के शुरका के सैर सपाटे, शहर इक्तदार की रौनकों का मुआयना। सुबह सवेरे उठे, नाश्ता करके इस्लामाबाद की सैर व तफरीह के लिए चल पड़े। फैसल मस्जिद मुजाहिरीन के लिए मरकज़े निगाह बनी रही। मुख्तलिफ शहरों से आने वाले लोगों ने हसीन लम्हात को कैमरे की आंख में महफूज किया। इस मौके पर सेल्फियों का भी खूब दौर चला और सोशल मीडिया के जरिए लोगों ने अपने प्यारों को हसीन मकामात भी दिखाए। बिलाल-ए-कौमी यूनिवर्सिटी में पढ़ा भी है और इसलिए हम तो पुराने यादगार के लिए यहाँ आए। इस्लामाबाद में आने का बुनियादी मकसद आज़ादी मार्च में, और आज़ादी मार्च का बुनियादी मकसद सिलेक्टेड और जाली हुक्मरानों से निजात दिलानी है इस कौम को। धरने से निकल गए हैं क्योंकि धरने की अभी वक्फा है थोड़ा। इंशाल्लाह ज़ोहर के नमाज के बाद उधर जाएंगे और दोबारा से इंशाल्लाह अपने जोश और जज्बे के साथ दोबारा उसमें शामिल होंगे। झूले झूलते, हंसते खेलते, नारेबाजी करते और घूमते फिरते मुजाहिरीन जहां मुतालिबात मनवाने के लिए पुरज़्म है, वहीं उनका इरादा है अपने आबाई इलाकों को वापसी से पहले पूरा इस्लामाबाद देख ही लेंगे।
और उधर आइटम गर्ल नीलम मुनीर भी सियासत के रंग में रंग गईं। इमरान खान को गिरफ्तार करने का ऐलान गैर मुनासिब करार देते हुए सोशल मीडिया पर कौमी परचम के साथ तस्वीर शेयर कर दी। कहती है कि मौलाना साहब की धमकी ने उनका दिल तोड़ दिया। आइटम गर्ल भी सियासी हो गई। मौलाना फजलुर रहमान की जानिब से वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को घर से गिरफ्तार करने के ऐलान को गैर मुनासिब करार दे दिया। सोशल मीडिया पर कौमी परचम के साथ अपनी तस्वीर शेयर करते हुए नीलम मुनीर ने मौलाना के आज़ादी मार्च पर अपनी राय का खुलकर इजहार किया। नीलम मुनीर लिखती हैं वो दिल से तमाम मजहबी स्कॉलर्स की इज्जत करती हैं, उनकी तकारीर और लेक्चर से रहनुमाई हासिल करती हैं। मौलाना साहब ने इमरान खान को घर से गिरफ्तार करने की धमकी देकर उनका दिल तोड़ा। हमारा मुल्क अफरा तफरी, इंतशार और सिविल नाफरमानी का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। हम नौजवानों को अपनी तकदीर संभालने की जरूरत है, जिसका सिर्फ एक ही रास्ता है कि हम मुल्क में इंतशार फैलाने वालों की एक ना सुने। नीलम मुनीर ने नौजवानों से मुखातिब होकर लिखा, हमें ऐसे लोगों और इदारों के खिलाफ मुत्तहिद होना होगा, चाहे वो कोई भी हो, जो हमारे प्यारे मुल्क को बर्बाद करने की कोशिश कर रहे हैं। यह वक्त तो एक ब्रेक का। देखते रहिए 92 न्यूज़ यूके। जनीवा में फ्रेंड्स ऑफ कश्मीर और सिख फॉर जस्टिस ने कश्मीर खालिस्तान रेफरेंडम फ्रंट कायम करने का ऐलान कर दिया। जनीवा में होने वाले एहतजाजी मार्च और कन्वेंशन से फ्रेंड्स ऑफ कश्मीर की चेयरपर्सन गजाला हबीब और दुनिया भर से आए सिख रहनुमाओं ने खिताब किया और कश्मीर और खालिस्तान की तहरीक मिलकर जारी रखने के अज़्म का इजहार किया। तफसीलात खुरम शहजाद की रिपोर्ट में। गुज़श्ता रोज़ अक़वाम मुत्तहिदा की कौंसल बराए इंसानी हकूक़ जनेवा के सामने सिखों और कश्मीरियों ने एक बड़ा एहतजाजी मुज़ाहरा किया था, जिसमें फ्रेंड्स ऑफ कश्मीर, सिख फॉर जस्टिस, कश्मीर खालिस्तान रेफरेंडम फ्रंट और दीगर तंजीमों ने भरपूर शिरकत की थी। एहतजाज के बाद सिख रहनुमाओं का कन्वेंशन हुआ है, जिसमें सिख तंजीमों ने कश्मीर खालिस्तान रेफरेंडम तश्कील देने का ऐलान कर दिया। सिक्की स्वरूप देखा ते गले टायर पाया जिंदे जी गला टायर पाके तड़फा के शहीद किया। फ्रेंड्स ऑफ कश्मीर की चेयरपर्सन गजाला हबीब का कहना था, कश्मीर खालिस्तान फ्रंट के क़याम का मकसद ये है कि दोनों कम्युनिटीज़ को उनका हक के खुद इरादत दिलवाया जाए। कश्मीर और सिख जो हैं दोनों कौमें मिलकर अपनी आज़ादी के लिए इंडिया के गासिबाना कब्ज़े के ख़िलाफ़ लड़ेंगी और हम यहाँ तमाम आलमी बरादरी से अपील करना चाहते हैं कि कश्मीर के हवाले से जो अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादें मंजूर हो चुकी हैं उन पर फिलफौर अमल किया जाए। और हमने कश्मीर खालिस्तान रेफरेंडम फ्रंट तख्लीक किया है और उस हवाले से जिस तरह सिक्स रेफरेंडम 2020 के लिए काम कर रहे हैं, इंशाल्लाह हम कश्मीरी भी अपने रेफरेंडम 2020 के लिए काम करेंगे, जिसका प्रॉमिस हक़ खुद इरादियत का हमसे यूनाइटेड नेशंस कर चुकी है। इस मौके पर मुकर्रिरीन ने कहा, भारत में फाशिस्ट हुकूमत है जहाँ अक़लियतों को हकूक़ हासिल नहीं। दुनिया फौरी तौर पर तवज्जो दे, क्योंकि सिखों की भी नस्ल कशी शुरू हो चुकी है। दूसरी जानिब खालिस्तान मूवमेंट के लीगल एडवाइजर्स ने हक़ खुद इरादियत के हवाले से कवानीन पर अमल करने की ज़रूरत पर जोर दिया। कन्वेंशन और मुजाहरे में अवतार सिंह पन्नू, डॉक्टर बख्शी सिंह, जसबीर सिंह, जतिंदर अग्रवाल, परमजीत सिंह, जक्रम सिंह, दोविंदर जीत सिंह, जगजीत सिंह, गरपंत सिंह, पन्नू, अली रज़ा सैयद ने शिरकत की। यह वक्त तो एक ब्रेक का। देखते रहिए 92 न्यूज़ यूके। जामिया गौसिया महरिया मस्जिद ब्रेडफोर्ड में मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिलसिले में एक खूबसूरत महफिल मुनक्किद की गई, जिसमें सना खां हजरात ने गुलहाए अकीदत पेश किए, जबकि पाकिस्तान के शहर गोजर खान से आए मौलाना सज्जाद साजिद ने खुसूसी खिताब किया। तफसीलात वकार बाबर मोगल की इस रिपोर्ट में। जामिया गौसिया महरिया मस्जिद ब्रेडफोर्ड में मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिलसिले में एक खूबसूरत महफिल मुनक्किद की गई, जिसमें पाकिस्तान के शहर गोजर खान से आए मौलाना सज्जाद साजिद ने खुसूसी खिताब किया। उनका कहना था कि हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तबा में ही इंसानियत की बका है। आपकी हयात जो है वो एक दूसरे की तीमारदारी सिखाती है, एक दूसरे की ताज़ियत सिखाती है, एक दूसरे के बारे में हुजूर का कितना खूबसूरत इरशाद है। जिस वक्त इंसानियत को इस अमल की ज़रूरत है कि हम इंसानियत पूरी जिस कर्ब से गुज़र रही है कि आपने फरमाया खैरुन्नास से मैं यनफ़उन्नास, लोगों में से बेहतरीन वो है
जो लोगों के लिए फ़ायदे का सबब है। तो हमें मिल कर रहना चाहिए, और ख़ास तौर पर यहाँ बरतानिया में जितने भी मुसलमान हैं उनको ख़ास तौर पे इत्तेहाद और इत्तेफाक का मुजाहरा करना चाहिए। मारूफ समाजी शख्सियत रज़ाक भट्ट की जानिब से सजाई गई इस पुरनूर महफिल में सना खान मुस्तफ़ा, अलहाज गुल तारुफ, कारी शब्बीर, मियाँ ज़िशान नदीम और दीगर ने खूबसूरत अंदाज में बारगाह रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में गुलहाए अकीदत पेश किए। आखिर में मकबूजा कश्मीर की आज़ादी के साथ आलम इस्लाम के अजीम सना खान, अलहाज यूसुफ मेमन की दर्जात की बुलंदी के लिए दुआ भी की गई। वकार बाबर मुगल, 92 न्यूज़, ब्रेडफोर्ड। माह रबीउल अव्वल के आगाज़ के साथ ही दुनिया भर में आशिकान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महफिल का एहतमाम शुरू कर देते हैं। ऐसी ही एक नूरानी महफिल का एहतमाम जर्मनी के शहर राउनहाइम में भी किया गया। इसी पर देखिए असगर मिर्जा की ये रिपोर्ट। जर्मनी के शहर राउनहाइम में हर साल की तरह जश्न ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नूरानी महफिल का इनेकाद हाजी तारिक की जानिब से किया गया, जिसमें सैकड़ों आशिकान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी फैमिलीज और बच्चों के हमरा शिरकत की। मकामी सना खान हाजी मोहम्मद अफजल कादरी, सैयद अफजाल शाह, खालिद महमूद कादरी समेत पाकिस्तान से खसूसी तौर पर तशरीफ लाए हुए नात खां मोहम्मद अफजल नुशाही और आबद हुसैन मासूमी ने नबी आखिरुज़्ज़मान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में गुलहाए अकीदत पेश किए। नात खां हजरात ने अपने खूबसूरत कलाम से हाज़रीन के दिलों में आबाद इश्क़ मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खूब ताज़गी बख्शी। इंग्लैंड से तशरीफ लाए हुए कारी अली मोहम्मद कादरी ने मियाँ मोहम्मद बख्श रहमतुल्लाह अलैह का कलाम सैफुल मलूक पढ़कर महफिल को चार चांद लगा दिए। सदर उलमा अहले सुन्नत जर्मनी मौलाना मोहम्मद अशरफ कादरी महफिल की सदारत के लिए स्टेज पर मौजूद थे। पाकिस्तान से तशरीफ लाए हुए मुबल्लिग इस्लाम शाह अब्दुल हक कादरी ने इस मौके पर सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से खूबसूरत खिताब किया। हमारे हुजूर हुक्मरान भी, हमारे हुजूर बादशाह भी, हमारे हुजूर शहंशाह भी, मुझे बताओ तो सही वो कौन सी ऐसी खूबी नहीं है कि जो अल्लाह ताला ने जबीन मुस्तफा में ना रखी हो। तो मालूम हुआ कि हम इस दुनिया में बनने के लिए आए हैं और हुजूर अलैहिस्सलाम अल्लाह की तरफ से सब कुछ बनकर हम बिगड़े हुओं को बनाने के लिए आए। महफिल के इख्तिताम पर दुरूद सलाम पेश किया गया। उम्मत मुस्लिमा की यकजहती, कश्मीरी मुसलमानों की आज़ादी के लिए खसूसी तौर पर दुआएं मांगी गईं। अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में इल्तिजा करते हैं कि मौला इस महफिल पाक को अपनी बारगाह में कबूलियत अता फरमा। जितने भी हाज़रीन यहाँ आए हैं सबको नबी करीम रऊफ़ुर रहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दरबार गौहर बार की हाज़री अता फरमा। जोग दर जोग लोग इस महफिल में हाज़िर हुए। इस दियारे गैर में हजूर के ज़िक्र की ये खूबसूरत महफिल और इतनी वालहाना महफिल, मैं ये कहता हूँ कि हजूर के ज़िक्र की ये महफिलें तबलीग का बेहतरीन ज़रिया है। कि मोहम्मद से वफ़ा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज़ है क्या लोहो कलम तेरे हैं। आज वाकई ही पाकिस्तानी कम्यूनिटी मुबारकबाद की हकदार है जिन्होंने आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बहुत ही खूबसूरत मिलाद पाक बनाया। अल्हम्दुलिल्लाह दोस्त दूर दराज तो तशरीफ ले आंदे ने, असी सब का शुक्रिया अदा करने हैं, मशकूर हाँ। असी हथ पैरों थले बिछा के बैठे होने हैं। अल्हम्दुलिल्लाह कोशिश करी दी भी हर चीज़ A1 होवे, कोशिश करी दी है भी किसी चीज़ की कमी ना होवे। पुरनूर महफिल के इख्तिताम पर शुरका को ज़ियाफ़त मिलाद भी पेश की गई। इश्क सरकार की एक शम्मा जला लो दिल में, बाद मरने के लहद में भी उजाला होगा। कैमरा टीम के साथ असगर मिर्ज़ा, 92 न्यूज़, फ्रैंकफर्ट, जर्मनी। यह वक्त तो एक ब्रेक का। देखते रहिए 92 न्यूज़ यूके। सऊदी अरब के शहर अल जबील में खातीन ने मौसम सरमा के हवाले से पाकिस्तानी सकाफत को उजागर करने के लिए इवेंट का इनेकाद किया, जिसमें खातीन के मशर की मलबूसात नुमाइश के लिए पेश किए गए। उमैर अली की रिपोर्ट। राइज क्लब की जानिब से मुनक्कद की गई इस तकरीब में खवातीन के अलावा बच्चों ने भी शिरकत की। इस मौके पर खवातीन ने मौसम सरमा को खुशामदीद कहने के लिए पाकिस्तानी मलबूसात की नुमाइश के अलावा जेवरात भी नुमाइश के लिए पेश किए। इस मौके पर राइज क्लब की सदर मदीहा काशिफ का कहना था कि तकरीब का मकसद दियारे गैर में अपनी सकाफत को मुतारिफ करवाना और खवातीन और बच्चों को तफरीही माहौल फराहम करना है। जो राइज क्लब की तरफ से कल्चर शो मुनक्किद किया गया है, ये सारे जो है जो परदेश में रहने वाले लोग हैं, जो हम लोग लेडीज़ हैं, बच्चे हैं, उनके लिए जो है बहुत अच्छी एक मिलना जुलना हो जाता है।
तकरीब में मुख्तलिफ खेलों के मुकाबले भी हुए और जीतने वालों में इनामात भी तकसीम किए गए। आगे बढ़ते हुए आपको बताते हैं कि कोटली आज़ाद कश्मीर और गिरदोनवाह में मौसम ख़ज़ां शुरू होते ही सकाफती और रिवायती तरीके से घास की कटाई जारी है। मजीद देखिए मोहम्मद अफसल की रिपोर्ट में। कोटली आज़ाद कश्मीर और नवाही इलाकों खोई रट्टा, नकेयाल, चढ़ोई और तत्ता पानी में खिज़ां का मौसम आते ही घास की कटाई का अमल शुरू हो गया, जिसमें बच्चों और बड़ों के साथ बुजुर्गों ने भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। मुकाबले में शरीक अफराद एक लाइन बनाकर बैठ जाते हैं और ढोल बजाकर आगाज किया जाता है। घास काटते हुए जब कोई आदमी आगे निकल जाता है तो ढोल बजाकर उसकी हौसला अफजाई की जाती है। रवायती तरीके से घास काटने को मकामी जुबान में लैतरी कहा जाता है, जिसमें इलाके के लोग भी अपने पड़ोसियों की मदद के लिए शरीक होते हैं। मुकाबले में आने वालों के लिए दोपहर के खाने का एहतमाम किया जाता है, जिसमें देसी घी, मक्खन, चटनी, मकई की रोटी और साग शामिल होता है। मुकाबले के बाद कटी हुई घास को खास तरीके से महफूज कर लिया जाता है, जो 6 माह तक मवेशियों के चारे के लिए इस्तेमाल की जाती है। मकामी लोगों का कहना है यूं मिलजुल कर अपने पड़ोसियों की मदद करने से भाईचारे को फरोग मिलता है। कैमरामैन अंसर महमूद के साथ मोहम्मद अफजल, 92 न्यूज़, कोटली, आज़ाद कश्मीर। इस न्यूज़ बुलेटिन से फिल वक्त इतना। देखते रहिए 92 न्यूज़ UK।